Good morning, student. This is our mathematics class, and we are studying our first chapter of mathematics, integers. And in integers, we are studying the point properties of multiplication. हम फर्स्ट चैप्टर में क्या देख रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज. Yesterday we have studied the properties. Which properties? First three properties: closure properties, commutative property and associative law. Now today we have to see next property, distributive property of multiplication of integers over addition. हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी देखनी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication of integers over addition. So this property says that multiplication of integers is distributive over addition. Means multiplication addition के लिए distributive होता है. See if a, b and c are any three integers. Means a, b और c ए कोई भी थ्री इंटीजर्स है, then a multiply by in bracket b plus c means addition of this two integers has given. means अगर हमें दिया है ये दो नंबर का एडिशन करना है इस ब्रैकेट में और इस एडिशन को a से मल्टीप्लाई करना है, तो हाउ कैन वी मल्टीप्लाई? सो फॉर दिस एक्सप्रेशन you have to multiply by this a to this both the integers. How? You have to multiply by a to this b separately. That is, in multiplication, if you have given addition, so you have to multiply by that integers to this both the integers in addition separately. Means see, you have to multiply by this a to this b separately in multiplication. Now plus addition. Now in second bracket you have to multiply this c separately, a multiply by c. Means अगर आपको ये दोनों नंबर का एडिशन दिया है और ये दोनों नंबर के एडिशन को इस a से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आपको इस a से इस b को सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बाय b, और प्लस ये जो एडिशन का साइन है वो वैसे कि वैसे ही लिखना है, और इस a से इस c को सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बाय c. आफ्टर दिस यू हैव टू ऐड द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटीजर. सपोज प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटीजर्स you get something and plus product of these two integers you get something. So you have to add the product of this two bracket. Sorry, I have written here the product of this two bracket. After that you have to add. See one example. See this example. 7 multiply by in addition in bracket 3 plus 4. So you have to multiply the addition of these two numbers by this 7. So see what is the result of this expression. See this 7 multiply by 3 plus 4 is equal to 7. So we get 7 multiply by 7 49. So the result of this expression is 49. अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आंसर 49. नाउ वी अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर दिस. अब हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके लिए यूज करते हैं. तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 7. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? आपको इस 7 से अगर ये दो नंबर एडिशन में है तो आपको इस 7 से इस 3 को सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है. ये प्रॉपर्टी कहती है. ए से हमने बी को सेपरेटली मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही 7 को 3 से सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है. 7 मल्टीप्लाई बाय 3. अब हमने इसे मल्टीप्लाई किया, हमें क्या करना है? एडिशन. तो आपको एडिशन का जो साइन है प्लस वो सेम ही रखना है, और अब आपको इस 7 से इस 4 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ए से हमने सी को भी सेपरेट मल्टीप्लाई किया था. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4. अब नाउ
we have to find the product of these two numbers separately plus product of these two numbers separately. So see, 7 3s are 21 plus 7 4s are 28. Okay, now we have to add these two numbers. So how many? 21 plus 28 is equal to 8 plus 1 9, 2 plus 2 4, 49. Means at this time we get 49, and when we apply distributive property at that time also we get 49. मल्टीप्लिकेशन हमें दोनों भी टाइम सेम ही आंसर मिलता है. मीन्स मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करती है? अगर आपको दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं, दो नंबर्स एडिशन में दिए हैं, और उस नंबर को अगर किसी सेकंड थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है तो आपको इस इंटीजर से इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस इस नंबर से इसको भी सेपरेटली मल्टीप्लाई करना होगा. नाउ सी स्टूडेंट, सम अनदर एग्जांपल. 5 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट -6 प्लस -7. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, 5 से मल्टीप्लाई करना है ये दो इंटीजर्स के एडिशन को. कौन से? -6 प्लस -7. तो फर्स्ट वी सॉल्व दिस in our simple method. See which is what we have to do. 5, this multiplication sign same as it is, in bracket addition of these two. How many? -6 plus -7 is equal to, we know, is equal to -13. Okay, so now after multiplication these two we get 13 5s are 65, and these both numbers have different sign. First have plus and second have minus. So which sign we give? We give minus sign. So the result of this expression is -65. Now we apply. Now we solve this expression by applying distributive property. हम क्या करते हैं? इस एक्सप्रेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करके देखते हैं. इसका आंसर हमें पता है कितना आता है, -65. अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी सॉल्व करेंगे तो हमें उतना आंसर कितना ही आना चाहिए, -65 ही आना चाहिए. तो हम इसे अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं. क्या करना है आपको? यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस इंटीजर टू दिस इंटीजर सेपरेटली प्लस दिस इंटीजर्स एंड दिस इंटीजर्स सेपरेटली. सो हम क्या करते हैं? अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इस इंटीजर्स को, इस दोनों इंटीजर्स को सेपरेटली मल्टीप्लाई करना होता है. देखिए कैसे? 5 मल्टीप्लाई बाय दिस इंटीजर्स -6, ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. अब आपको इसके सामने कौन सा साइन है? प्लस. सो यू हैव टू राइट दिस साइन सेम एज इट इज, प्लस. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 5 टू दिस -6, विच इज 5 मल्टीप्लाई बाय दिस -7. Now after finding the product of this bracket and this bracket, you have to add these two bracket. See, 6 5s are -30 plus 7 5s are -35. See, 7 5s are 35. Both numbers have different signs, so we give minus sign. हमें क्या करना है? ये दोनों का प्रोडक्ट सेपरेटली फाइंड करना है. तो ये कितना आता है? 5 6 30. अब ये दोनों को डिफरेंट साइन है, इसको प्लस है और इसको माइनस है, तो हमें इसे माइनस साइन देना है. ये प्लस साइन वैसे की वैसे ही, प्लस 7 5s -35. नाउ वी हैव टू ऐड दिस टू, तो वी गेट -65. अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है? -65. सो मीन्स अगर हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमें -65 भी मिलता है, और हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो भी हमें -65 मिलता है. मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव
identity. It says that the product of any integer and 1 is the integer itself. मीन्स ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम कोई भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको उस दोनों मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आता है वो इंटीजर ही मिलता है. क्या मिलता है? वही इंटीजर जिससे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था. मीन्स क्या कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी कहती है, अगर हम किसी भी इंटीजर से को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमें वही इंटीजर मिलता है. सी एग्जाम्पल, दिस इज एन इंटीजर 8. इफ वी मल्टीप्लाई बाय 1 टू दिस इंटीजर 8, सो वी गेट दिस इंटीजर इटसेल्फ. मीन्स अगर हम इस 8, ये इंटीजर है, इस इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये उसका जो प्रोडक्ट है वो वही इंटीजर मिलेगा जिससे हमने इस 1 को मल्टीप्लाई किया था. वो कौन सा है? 8. अगर हम देखिए ये इंटीजर है -10. अब इस -10 को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 को, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? -10 वही इंटीजर मिलेगा.